आने वाले दिनों में एमएसएमईज में काफ़ी प्राविधान आए हैं और ट्रेडर्स के समझो बैंक्स में लोन या बिजनेस सपोर्ट उसमें भी प्राविधान आए हैं। बैंकों को हिदायत दी गई है कि ट्रेडर्स के व्यापारियों के लोन को देखा जाए। भारतीय कानून प्रणाली है, तभी हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जल्दी कानूनन सपोर्ट मिले। राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी काफी प्रयास हो रहा है। Today we spoke with the president of the West Bengal Trade Association. Our discussion focused on ensuring equal rights for retailers in the industry. We asked him about his demands from the government, which ministry he is engaging with, and how he plans to resolve this issue. He stated that they have appealed to the government to establish a separate ministry for retailers and grant them equal rights. Currently, retailers fall under the Department of Internal and International Trade within the commerce sector, but they do not have a dedicated ministry. Traders and retailers discuss their issues in board meetings, which are held 5 times a year. However, efforts are being made to increase the frequency of these meetings. Retailers को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इनफैक्ट कॉमर्स वर्ड में रिटेल और ट्रेड छुपा हुआ है। कॉमर्स जो शब्द है उसमें रिटेल और कॉमर्स आता है और उसके अंडर में DPIIT है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इसको हैंडल यही करते हैं। हमने सरकार से बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि सेपरेट मिनिस्ट्री ट्रेड के लिए की जाए, तो सरकार ने बताया कि कॉमर्स में छुपा हुआ है DPIIT के अंडर में। अभी DPIIT के अंडर में ही एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बना है, इसलिए वो DPIIT के अंडर में हमारी बोर्ड मीटिंग साल में 5 बार होती है रफली। अभी हम और नंबर्स बढ़ाएंगे तो वहाँ हम ट्रेडर्स की समस्या पर ही डिस्कस करते हैं। Regarding the lack of special recognition for retailers in banks and other institutions, he mentioned that the MSME sector has introduced several provisions for traders. Banks are also engaging with traders for loan-related matters, indicating some level of inclusion. He is actively seeking government support and has reached out to both the Union Minister of Commerce and the MSME sector at the state level regarding this issue. Additionally, this topic is being discussed in board meetings attended by representatives from various states across India. आने वाले दिनों में MSMEs में काफ़ी प्राविधान आए हैं और ट्रेडर्स के समझो बैंक्स में लोन या बिजनेस सपोर्ट उसमें भी प्राविधान आए हैं। बैंकों को हिदायत दी गई है कि ट्रेडर्स के व्यापारियों के लोन को देखा जाए और उनकी समस्याओं को देखा जाए। अभी रिसेंटली भारत का जो बजट आया उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने एक 5 लाख रुपए तक का लोन भी लोगों को सैंक्शन करवाया है, एकदम छोटे व्यापारियों के लिए। और हमारे पश्चिम बंगाल सरकार का ऑलरेडी एक भविष्यत कार्ड है जिसको भविष्यत कार्ड बोलते हैं और उसमें 5 लाख तक का लोन मिलता है। The next question arises: if small retailers from a significant part of the governments is a vote bank, why are they being overlooked? The president responded that the government is not completely ignoring them. The recent budget reflected measures in favor of the middle class, including a reduction in income tax, which was influenced by traders' recommendations. Since India has around 10 crore retailers, with many people financially dependent on them, this remains a crucial issue that needs to be addressed. Finally, he emphasized that they have urged the government to take this matter seriously, because if retailers disappear, the economy will collapse. While the government has initiated some steps, the fight for the rights continues.
हम लोग पूरा जैसे भारतीय कानून प्रणाली है, तभी हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जल्दी सब सपोर्ट मिले, कानूनन सपोर्ट मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा। और काफ़ी हद तक अभी स्टेट स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी काफ़ी प्रयास हो रहा है। जैसे केंद्र में कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहाँ बंगाल में MSME सेक्रेटरी हैं राजेश पांडे सर, मिस्टर राजेश पांडे सर, और केंद्र में मंत्री जी हैं मिस्टर पीयूष गोयल सर। तो उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग की असुविधा और हमारे जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का, जैसा मैंने बताया, मैं खुद एक बोर्ड मेंबर हूँ और हमारे चेयरमैन हैं सुनील सिंघी जी। तो हम उस बोर्ड मीटिंग में सब डिस्कस करते हैं और उसमें भारत के डिफरेंट प्रांतों से लोग आते हैं और उसमें सारी मिनिस्ट्री के अफसर रहते हैं। प्राय 9 मिनिस्ट्री के अफसर वहाँ रहते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी नज़रअंदाज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बजट भी अपने आप में कुछ कह रहा है। अच्छा। अगर आप देखें तो रिटेलर्स को फोकस करने के लिए और मध्यम वर्ग को फोकस करने के लिए अच्छा। ये बजट आया है। हमने एक्सपेक्ट किया था और गवर्नमेंट को सजेशन भी हमने डाला था कि इनकम टैक्स में 10 लाख तक की छूट दी जाए, उसकी जगह उन्होंने 12 लाख कर दिया, तो 2 लाख ज़्यादा दिया, तो हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। इस तरह से इस बार मैं देख रहा हूँ, आप वोट बैंक वाली बात सही बोले हैं और नो डाउट, क्योंकि रिटेलर्स का फोकस इसलिए भी है क्योंकि यह करना पड़ेगा सरकार को। आपने जो वोट बैंक वाली बात बोली सही बोली, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत में 10 करोड़ रिटेलर हैं। हाँ। छोटे बड़े सब मिला के। हाँ। और अगर 10 करोड़ हैं तो गुना 5 या 6 लगा लो आप, मतलब इंटू 5 और इंटू 6, तो 60 करोड़ हो गए। मतलब क्या, एक रिटेलर के साथ 5 लोगों का परिवार लगा हुआ है मिनिमम, चाहे वो हैंड कार्टर हो, चाहे वो उसका हेल्पर हो, चाहे वो उसका सप्लायर हो। सुबह कोई ब्रेड देने आता है तो सुबह कोई दूध देने आता है उसकी दुकान पर। मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, बड़े की भी आप देखेंगे उससे कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं, उसके कर्मचारी जुड़े हैं, तो उसका परिवार जुड़ा है। तो भारत सरकार को हमने विनती लगाई है, गुहार लगाई है कि इस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक भी हैं और नहीं अगर रिटेलर मर जाएगा तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। सरकार मेरे ख्याल से कार्यरत है और हमारी पश्चिम बंगाल सरकार भी काफी फोकस दे रही है। तो शायद कुछ आना चाहिए हमें, तो अब नहीं है तो मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।